This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का बाइबल पठन मरकुस अध्याय 1 और अध्याय 2। यीशु के आने की तैयारी। यह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के शुभ संदेश का प्रारंभ है। भविष्यद्वक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि सुन, मैं अपने दूत को तुझसे पहले भेज रहा हूँ, वह तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। मलाकी अध्याय 1 वचन 3। जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी बनाओ। यशायाह अध्याय 40 पद 3। यूहन्ना लोगों को जंगल में बपतिस्मा देता आया था। उसने लोगों से बपतिस्मा लेने को कहा कि वे अपने मन फिराव को दिखा सके और उनके पापों की क्षमा हो। फिर समूचे यहूदिया देश के और यरूशलेम के लोग उसके पास गए और उसने यरदन नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पाप मान लिए थे। यूहन्ना ऊंट के बालों के बने वस्त्र पहनता था और कमर पर चमड़े की पेटी बांधे रहता था। वह टिड्डियां और जंगली शहद शहद मीन्स हनी, टिटिया मीन्स लोकस्टस। दिस इज द फूड ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। शहद खाया करता था। वह इस बात का प्रचार करता था, मेरे बाद मुझसे अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति आ रहा है, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि झुककर उसके जूतों के बंद तक खोल सकूं। मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, किंतु वह पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। यीशु का बपतिस्मा और उसकी परीक्षा। The baptism of Jesus Christ and the temptation of Jesus Christ by Satan। उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु नासरत से गलील आया और यरदन नदी में उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। This Yehuna is John the Baptist, not the John the Apostle that is leaning on the bosom of Jesus Christ, not the one among the apostles. John the Baptist is different. John the Apostle is different. The audience should not get confused. John the Apostle is much elder to John the Baptist, much younger to John the Baptist. उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु नासरत से गलील आया और यरदन नदी में उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। By the grace of God, to the preacher, that is me, special grace is given that by the grace of Jesus Christ, I could visit Israel and be in Israel as a postdoctoral researcher for 6 long years. Though I'm not a fan of visiting tourist spots, I'm prompted to visit some holy places in Israel, especially the places that are mentioned here. That is Galilee. That is a very, very calm and serene place. It can be called as a sea, Galilee Sea. And the shores of the sea are very, very calm, like the shores of the
calm river. It's a very pleasant place. It's a very beautiful place that I have ever seen with my own eyes. And then the river Jordan. Yeah, I myself have seen River Jordan, went into the waters of River Jordan, and these places I have seen with my own eyes, and I am a testimony to the truthfulness of the words that are present in the Bible. Heaven and earth will pass away, but not the word that is written in the Word of God. That is why the Bible is called Holy Bible and the living word of God. So the Word of God is real and can be trusted, and it has been proved again and again. Continuing further, जैसे ही वह जल से बाहर आया जैसे ही वह जल से बाहर आया उसने आकाश को खुले हुए देखा और देखा कि एक कबूतर के रूप में आत्मा उस पर उतर रहा है। फिर आकाशवाणी हुई, तू मेरा पुत्र है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। You are my beloved son in whom I am well pleased. फिर आत्मा ने उसे तत्काल बियाबान जंगल में भेज दिया, जहां 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। 40 मीन्स 40 days and 40 nights. All Christians will observe Lent for the period of 40 days, starting from, if I'm correct, from March 15th to April 20th, I suppose, the season of Lent, and that need to be verified once again. जहाँ 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा, वह जंगली जानवरों के साथ रहा और स्वर्गदूतों उसकी सेवा करते रहे। यीशु द्वारा कुछ शिष्यों का चयन, it's not Qian. In Chinese, Qian means money. We all love money, no? Yeah, it's different. यीशु द्वारा कुछ शिष्यों का चयन। यूहन्ना को बंदी गृह में डाले जाने के बाद यीशु गलील आया और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार मीन्स गॉस्पेल का प्रचार करने लगा। उसने कहा, समय पूरा हो चुका है। The readers may ask, when Jesus has said that the time is up, what does he mean? Jesus Christ has come and gone, and it is more than 2000 years that Jesus Christ has come and gone. Everything is same as it was. These are the legitimate questions, and you can find answers by yourself from the Word of God. परमेश्वर का राज आ रहा है, मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। जब यीशु गलील झील, please note it's mentioned as a lake and not a sea. Yeah, it's like a lake as well. It can be called as a sea as well. It's calm as a lake. And the pleasant beauty is like oceanic waters. Yeah, it's a worth seeing place. जब यीशु गलील झील के किनारे से होकर जा रहा था, उसने शमौन के भाई अंद्रियास को देखा, क्योंकि वे मछुए थे। मछुए मीन्स फिशरमैन, इसलिए झील में जाल डाल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, आओ और मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी, मैं तुम्हें लोगों को एकत्र करने वाले बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे चल पड़े। जाल मीन्स नेट, द नेट दैट इज यूज्ड टू कैच फिश। फिर थोड़ा आगे बढ़कर यीशु ने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। Yeah, this John is different from the John that we have seen in the beginning of this chapter. This John is not John the Baptist. This is John the Apostle.
chosen to be the disciple of Jesus Christ and the youngest among all the 12 disciples. And John Apostle was leaning on the bosom of Jesus Christ, and he was given special revelations of future happenings and special revelations regarding heaven. How does the heaven look like? Who will be dwelling in heaven? The streets made of gold, the trees that will yield fruit 4 times a year, all through the year, and the city, the holy city, meant for the chosen people of God. All these things were present in the book of Revelations. The book of Revelation happened to be the 66th book of the Bible, and this 66th book of the Bible was written by John the Apostle. In addition to the book of Revelation, John the Apostle has written 4 other books by name the Gospel according to John, followed by John's first letter of John, second letter of John, third letter of John. 3 letters, one gospel account, and Revelation. These are the 5 books in the New Testament composed by John the Apostle, the disciple that Jesus Christ loved the most. वे अपनी नाव में जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें तुरंत बुलाया, सो वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। दुष्ट आत्मा के चंगुल से छुटकारा, deliverance from unclean spirit. The presence of unclean spirit or the existence of evil spirits is real. The Bible is a living testimony, and I myself am a living testimony. I do have encounters with dark forces, and when I encounter such dark forces, I just say one thing: Satan, I rebuke you in the mighty name of Lord Jesus Christ, and it will flee away. The science as well as the religion are the 2 ways man has chosen to reach the truth. Religion is far ahead of science. Science has to find ways and means to see the presence of dark forces, evil spirits, and also God. दुष्ट आत्मा के चंगुल से छुटकारा। और कफर नहूम पहुंचे। Capernaum means Capernaum. Capernaum. I am privileged to be in this place also. So वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के हाथ नाव में छोड़कर उसके पीछे चल पड़े और कफरनहूम पहुंचे। फिर अगले सब्त means Shabbat. This day already the Shabbat is over. Sundown Saturday is the closure of Shabbat as per the Jewish calendar is concerned, and the Jewish people are already in Sunday, the first day of the week. फिर अगले सप्त के दिन यीशु प्रार्थना सभा मीन्स सिनागोग में गया और लोगों को उपदेश देने लगा। उसके उपदेशों पर लोग चकित हुए। People were surprised to hear the words proceeding from the mouth of Lord Jesus Christ, क्योंकि वह उन्हें किसी शास्त्र ज्ञाता की तरह नहीं बल्कि एक अधिकारी की तरह उपदेश दे रहा था। Jesus Christ was preaching with authority, unlike the scribes. उनकी यहूदी प्रार्थना सभा में संयोग से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसमें कोई दुष्टात्मा समाई थी। वह चिल्लाकर बोला, नासरत के यीशु, तुझे हमसे क्या चाहिए? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तू परमेश्वर का पवित्र पुत्र है। इस पर यीशु ने झिड़कते हुए उससे कहा, चुप रह और इसमें से बाहर निकल। दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को झिंझोड़ा और वह जोर से चिल्लाती हुई उसमें से निकल गई। हर व्यक्ति
चकित हो उठा, इतना चकित कि सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? अधिकार के साथ दिया गया एक नया उपदेश। यह दुष्टात्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसे मानती हैं। इस तरह गलील और उसके आसपास हर कहीं यीशु का नाम जल्दी ही फैल गया। यीशु द्वारा अनेक व्यक्तियों का चंगा किया जाना। फिर वे प्रार्थना सभागार से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे शमौन और अंद्रियास के घर पहुंच गए। शमौन की सास, सास मीन्स मदर इन लॉ ऑफ शिमोन पीटर, ज्वर से पीड़ित थी, इसलिए उन्होंने यीशु को तत्काल उसके बारे में बताया। यीशु उसके पास गया और हाथ पकड़कर उसे उठाया। तुरंत उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा करने लगी। सूरज डूबने के बाद जब शाम हुई तो वहां के लोग सभी रोगियों और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को उसके पास लाए। सारा नगर उसके द्वार पर उमड़ पड़ा। उसने तरह तरह के रोगों से पीड़ित बहुत से लोगों को चंगा किया और बहुत से लोगों को दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाया। The existence of unclean spirits or evil spirits is real. क्योंकि वे उसे जानती थी, इसलिए उसने उन्हें बोलने नहीं दिया। लोगों को सुसमाचार सुनाने की तैयारी। अंधेरा रहते बड़ी सुबह वह घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया जहां उसने प्रार्थना की। किंतु शमौन और उसके साथी उसे ढूंढने निकले और उसे पाकर बोले, हर व्यक्ति तेरी खोज में है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हमें दूसरे नगरों में जाना ही चाहिए ताकि वहां भी उपदेश दिया जा सके, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूँ। इस तरह वह गलील में सब कहीं उनकी प्रार्थना सभाओं में उपदेश देता और दुष्टात्माओं को निकालता गया। कोढ़ से छुटकारा। फिर एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने उसके सामने झुककर उससे विनती की और कहा, यदि तू चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है। कोढ़ माने लेपर। उससे उस पर दया आई और उसने अपना हाथ फैलाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे हो जाओ। और उसे तत्काल कोढ़ से छुटकारा मिल गया, वह पूरी तरह शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कड़ी चेतावनी दी और तुरंत भेज दिया। यीशु ने उससे कहा, देख, इसके बारे में तू किसी को कुछ नहीं बताना, किंतु याजक के पास जा और उसे अपने आप को दिखा और मूसा के नियम के अनुसार अपने ठीक होने की भेंट अर्पित कर, ताकि हर किसी को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले। तुरंत वह बाहर जाकर खुले तौर पर इस बारे में लोगों से बातचीत करके इसका प्रचार करने लगा। इससे यीशु फिर कभी नगर में खुले तौर पर नहीं जा सका। वह एकांत स्थानों में रहने लगा, किंतु लोग हर कहीं से उसके पास आते रहे। मार्क अध्याय 2। लकवे के मारे का चंगा किया जाना। कुछ दिनों बाद यीशु वापस कफरनहूम आया तो यह समाचार फैल गया कि वह घर में है। फिर वहां इतने लोग इकट्ठे हुए कि दरवाजे के बाहर भी तिल धरने तक को जगह न बची। जब यीशु लोगों को उपदेश दे रहा था तो कुछ लोग एक लकवे के मारे को 4 आदमियों से उठवा कर वहां लाए। लकवे मीन्स पैरालिटिक। किंतु भीड़ के कारण वे उसे यीशु के पास नहीं ले जा सके, इसलिए जहां यीशु था उसके ऊपर की छत का कुछ भाग उन्होंने हटाया। और जब वे खोद कर छत में एक खुला सुराख बना चुके तो उन्होंने जिस बिस्तर पर लकवे का मारा लेटा हुआ था जकवे का मारा लेटा हुआ था, उसे नीचे लटका दिया। With the bed itself, the paralytic person was dropped from the roof into the room where Jesus Christ was present and preaching the multitudes in the room. उनके इतने
गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उस समय वहां कुछ धर्मशास्त्री भी बैठे थे। वे अपने अपने मन में सोच रहे थे, यह व्यक्ति इस तरह बात क्यों करता है? या तो परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर के सिवा और कौन पाप को क्षमा कर सकता है? यीशु ने अपनी आत्मा में तुरंत यह जान लिया कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। वह उनसे बोला, तुम अपने मन में ये बातें क्यों सोच रहे हो? सरल क्या है, इस लकवे के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपना बिस्तर उठा और चल दे? What is easy, to say to the leper that your sins have been forgiven of you, or arise, take up your bed and walk? किंतु मैं तुम्हें प्रमाणित करूंगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार है कि वह पापों को क्षमा करे। On the earth, the Son of Man has the power and authority to forgive the sins of man. फिर यीशु ने उस लकवे के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और अपने घर जा। सो वह खड़ा हुआ, तुरंत अपना बिस्तर उठाया और उन सब के देखते देखते ही बाहर चला गया। यह देखकर वे अचरज में पड़ गए। They were surprised and astonished. उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की और बोले, हमने ऐसी बातें कभी नहीं देखी। We have never seen such a thing like this. एक बार फिर यीशु झील के किनारे गया तो समूची भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु ने उन्हें उपदेश दिया। चलते हुए उसने हलफई के बेटे लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखकर उससे कहा, मेरे पीछे आ। सो लेवी खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। इसके बाद जब यीशु अपने चेलों या शिष्यों समेत उसके घर भोजन कर रहा था तो बहुत से कर वसूलने वाले और पापी लोग भी उसके साथ भोजन कर रहे थे। इनमें बहुत से वे लोग थे जो उसके पीछे पीछे चले आए थे। जब फरीसियों के कुछ धर्मशास्त्रियों ने यह देखा कि यीशु पापियों और कर वसूलने वालों के साथ भोजन कर रहा है, तो उन्होंने उसके अनुयायियों से कहा, यीशु कर वसूलने वालों और पापियों के साथ भोजन क्यों करता है? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, चंगे भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। चंगे भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, रोगियों को ही वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु अन्य धर्मगुरुओं से भिन्न है। यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास किया करते थे। कुछ लोग यीशु के पास आए और उससे पूछने लगे, यूहन्ना और फरीसियों के चेले उपवास क्यों रखते हैं और तेरे शिष्य उपवास क्यों नहीं रखते? इस पर यीशु ने उनसे कहा, निश्चय ही बाराती जब तक दूल्हे के साथ है, उनसे उपवास रखने की उम्मीद नहीं की जाती है। So long as the bride is with the groom, no one will fast. जब तक दूल्हा उनके साथ है, वे उपवास नहीं रखते। So long as the groom is with the bride, no one will fast. किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा और तब उस समय वे उपवास करेंगे। There is going to come a day when the bride is taken away from them and then they will fast. कोई भी किसी पुराने वस्त्र में अनसिकुड़े कोरे कपड़े का पायबंद नहीं लगाता, और यदि लगाता है तो कोरे कपड़े का पायबंद पुराने कपड़े को भी ले बैठता है और फटे कपड़े की पहुंच और भी बढ़ जाती है। और इसी तरह पुरानी मशक में कोई भी नई धाकरस नहीं भरता, और यदि कोई ऐसा करे तो नई धाकरस पुरानी मशक को फाड़ देगी और मशक के साथ साथ दाखरस भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नई दाखरस नई मशकों में ही भरी जाती है। यहूदियों द्वारा यीशु और उसके शिष्यों की आलोचना। ऐसा हुआ कि सब्त के दिन यीशु खेतों से होता हुआ जा रहा था। जाते जाते उसके शिष्य
खेतों से अनाज की बालें तोड़ने लगे। इस पर फरीसी यीशु से कहने लगे, देख, सब्त के दिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं जो उचित नहीं है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी दाऊद के विषय में नहीं पढ़ा कि उसने क्या किया था जब वह और उसके साथी संकट में थे और उन्हें भूख लगी थी। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब अबियातार महायाजक था तब वह परमेश्वर के मंदिर में कैसे गया और परमेश्वर को भेंट में चढ़ाई रोटियां उसने कैसे खाई, जिनका खाना महायाजक को छोड़कर किसी को भी उचित नहीं है। कुछ रोटियां उसने उनको भी दी थी जो उसके साथ थे। यीशु ने उनसे कहा, सब्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के लिए। द मैन इज मेड फॉर द Sabbath is made for the man, and the man is not made for Shabbat. The Shabbat is for the man, and the man is not for the Shabbat, Jesus said. इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द का भी प्रभु है. So the Son of Man is the Lord of Shabbat as well. वालेकुम अस्सलाम. आज का बाइबल पठन समाप्त हो गया.